ایک خاموشی ہے تہران کی گلیوں میں، ایک ہوا ہے جو صرف محسوس کی جا سکتی ہے، اور ایک کہانی ہے جسے صرف وقت ہی بیان کر سکتا ہے۔ ایک خاتون جسے دنیا کیتھرین کے نام سے جانتی ہے، ایک ویسٹرن جرنلسٹ جو چادر اوڑھ کر آیت اللہ خامنائی کے ایران میں گھس گئی۔ وہ سفید حجاب پہنتی تھی، قرآن کی آیات پر یقین رکھتی تھی اور ایران کے سپریم لیڈر سے ملنے تک کا سفر طے کر لیا تھا۔ یہ کہانی ایک رپورٹر کی نہیں، ایک بیٹل فیلڈ کی ہے، جہاں جرنلزم کے پیچھے اسپینیج چھپا تھا، اور جہاں چادر ایک ڈسگائز تھا اور کیمرہ ایک ویپن۔ تصور کیجئے ایک فورن عورت who doesn't know a word of فارسی ایران کے بڑے بڑے لیڈرز اور پولیٹیشنز کے ساتھ ایک ون آن ون انٹرویو میں بیٹھتی ہے، مسائل پر سوال، تہذیب میں لطف، مگر نگاہوں میں ایک اجنبی ٹھہراؤ۔ یہ تھا اس وقت کا ایک سرپرائزنگ مومنٹ جب کیتھرین برٹش پاسپورٹ کے ساتھ ایران میں ٹاپ لیڈرشپ تک ایکسیس حاصل کی۔ مگر سوال یہ ہے، یہ سب کیسے ہوا اور کیوں کسی کو شک نہیں ہوا؟ اگر ہم کیتھرین کی ارلی لائف کی بات کریں تو کیتھرین کی اصل زندگی ایک پراسرار داستان ہے۔ کچھ سورسز کے مطابق کیتھرین کا اصل نام کیتھرین پریز شکدام ہے، جو فرانس میں پیدا ہوئی، جوئش فیملی سے تعلق تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اسلام اور پھر ایران کے کلچر اور پولیٹیکل نیریٹو میں گھس گئی۔ She reportedly studied Middle Eastern politics and Islamic studies, possibly from institutions like SOAS School of Oriental and African Studies, London. اس نے اپنی رائٹنگز میں یہ کلیم کیا ہے کہ وہ اسلام سے متاثر ہوئی اور بعد میں شیعہ مذہب قبول کیا۔ اس کی شادی بھی رپورٹڈلی ایک مسلم سے ہوئی، جسے اس نے کنورٹ ہونے کے بعد طلاق دے دی۔ کیتھرین نے جرنلزم کا چولا پہنا، لیکن اس کا پین صرف سچ لکھنے کے لیے نہیں تھا۔ وہ انڈیپینڈنٹ میڈیا آؤٹلیٹس جیسے کہ مہر نیوز، ایران فرنٹ پیج اور انٹرنیشنل لیول پہ RT اور الجزیرہ، حتیٰ کہ BBC تک اس کی ایکسیس تھی۔ کیتھرین نے ایرانین اسٹیٹ میڈیا میں بھی کام کیا اور اسے انسائیڈر کی ایکسیس ملی، جو کہ ایران کے پولیٹیکل اور ملٹری کوریڈورز تک لے کے گیا، یہاں تک کہ ریولوشنری گارڈز کے کچھ آفیشل سے بھی اس کی ایکسیس کا ذکر ملتا ہے۔ What made people suspicious؟ کیتھرین نے 2022 میں BBC کو ایک شاکنگ انٹرویو دیا۔ Maybe you have created more questions than answering. Maybe. You say that you were so keen to be led in within the Iranian ruling elite, perhaps, that you neither argued or revealed your true motivations. What was your true motivation? You worked with the Israeli geostrategic analysis consultancy called Wikistrat. No, look. I think this my work relationship with Wikistrat has been blown out of proportion. See, this is the thing that people don't understand, because they're asking, how can you work, with Wikistrat, which is run by, Israeli, Chidan al-Majella. Yes, I converted to Islam, very early on into my marriage. Yeah. Wikistrat, Israeli think tank, leaning towards the intelligence mainly, and then you worked with the Saudi Arabian conservative, and then suddenly went towards the Iranian. Well, how did you get close to Iran? I think that the regime is so starved for Western validation. Things that you wrote about Yemen or elsewhere or Israel or whatever, did you actually believe in them, or you were just making opportunity for yourself? No. Converted to Shia Islam. Yes, I you did. become a Shia. And not only just ordinary Shia, you wrote a lot. I did. You wrote 3 books, you wrote a number of articles, you praised all the Shia characters. You went over the top. I did. Was it out of belief, really? It wasn't just in writing or in the media. You actually went close to the Iranian politicians and Yes. elites and all that. I mean,
who was the highest ranking person that you actually got very close to? I was in the presence of Ayatollah Khamenei. And that is that you had sexual relationship with so many of the Iranian politicians. इन स्टेटमेंट्स ने ईरान की मीडिया और इंटेलिजेंस को हिला कर रख दिया। कैथरीन ने एक किताब भी लिखी, अ टेल ऑफ ब्रांड रेजिस्टेंस, जिसमें उसने ईरान के पर्सपेक्टिव को ग्लोरीफाई किया और अपने आप को एक प्रैक्टिसिंग शिया वुमन के तौर पर पेश किया। उसने कुछ मज़ीद किताबें भी लिखी, जैसे कि अरेबिया's राइजिंग अंडर द बैनर ऑफ फर्स्ट इमाम, अ टेल ऑफ ब्रांड रेजिस्टेंस, यमन, द वहाबिज़म एंड द हाउस ऑफ साउथ, और फिर फ्रॉम मक्का टू द प्लेन ऑफ करबला, वॉकिंग विद द होली हाउस होल्ड ऑफ प्रॉफिट। अब इन किताबों को देख के क्या लगता है कि ये तो मुकम्मल तौर पे एक शिया खातून होगी, एक औरत जिसने कुरान को जिक्र बनाया और जिसने अहले बैत के दर्द को महसूस किया, मगर असल में वो एक स्क्रीन प्ले लिख रही थी जिसका क्लाइमेक्स था ट्रस्ट का ताज़िया। किसी मुल्क को टॉन करने के लिए टैंक्स, जेट्स या बॉम्ब्स की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी एक मुस्कुराती हुई औरत, एक पेन और एक कैमरा काफ़ी होता है। कैथरीन शाकदाम ईरान में सिर्फ एक जर्नलिस्ट नहीं थी, वो अलेजिडली परसेप्शन वॉरफेयर की मोहरी थी। एक ऐसी लड़की जिसे ईरानियन इस्टेब्लिशमेंट ने ट्रस्टेड एलाय समझा, मगर अलेजिडली वो इजराइल के इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स का एक साइलेंट एजेंट थी। उन्होंने चादर ओढ़ी लेकिन नीयत में निकाब था। कैथरीन ईरान आई एज एन इस्लामिक रिसर्चर। उसने तेहरान के मीडिया आउटलेट्स से दोस्ती की। वो फारसी नहीं जानती थी और आज भी उसके सरनेम ज्यू एंसेस्टर का हवाला पेश करता है। खैर, उसने प्रेस क्रेडेंशियल्स हासिल किए। शी वॉज ग्रांटेड ऑफिशियल परमिशन टू कवर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एंड पॉलिटिकल इवेंट्स। महर न्यूज़ एजेंसी और ईरान फ्रंट पेज जैसे प्लेटफॉर्म्स ने उसको ऑपेड पब्लिश किया। शी इवन विजिटेड कौम मशहद एंड करबला टू डॉक्यूमेंट शिया रिचुअल्स। यानी उसका एलिजिड कवर परफेक्ट था और उसकी एक्सेस ग्रेजुअली डीप हो गई थी। एक मुसलमान मुहक्किक जो वेस्ट में इस्लामोफोबिया का जवाब बनाकर उभार रही हो, ईरान ने उसे एम्ब्रेस किया और फिर उसने ईरानियन एलीट में पेनिट्रेट करना शुरू किया। कैथरीन्स बिगेस्ट अचीवमेंट थी कि ईरानियन इस्टेब्लिशमेंट का ट्रस्ट जीतना, और उसके की ब्रेक थ्रू इवेंट्स थे शी वॉज इन्वाइटेड टू एक्सक्लूसिव रिलीजियस गैदरिंग्स, प्रेस इवेंट्स और even private policy dialogues in Tehran. She reportedly attended Wali Faqih Foundation seminars, IRGC intellectual panels and foreign ministry events. और सबसे बड़ी बात, उसने मल्टीपल टाइम्स ईरानियन ऑफिशियल्स का 1-on-1 इंटरव्यू भी किया, जिनमें प्रेसिडेंट ऑफ ईरान रईसी भी शामिल थे। She once claimed, I said hello to Ayatollah Khamenei as well. कैथरीन अपने आप को इस्लामिक मीडिया एक्टिविस्ट के तौर पर पेश करती थी, लेकिन उसका काम था सोशल इंजीनियरिंग। शी वुड आस्क पर्सनल क्वेश्चंस इन द नेम ऑफ कल्चरल रिसर्च और उन आंसर्स को पॉलिटिकल एनालिसिस में यूज़ करती थी। दूसरा उसका मेजर काम था मीडिया एक्सेस। जो प्रेस ब्रीफिंग्स वो अटेंड करती थी, उनका रिकॉर्ड या राइटअप सिर्फ स्टोरी के लिए नहीं, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग और नरेटिव टैकलिंग भी हो सकता था। एलिजिड डीप प्रोफाइलिंग, शी प्रोफाइल्ड dozens of Iranian journalists, clerics and students, noting their ideological loyalties, attitudes towards West और उनकी network influence. Number 4, alleged espionage via articles. उसके आर्टिकल्स मोस्टली ईरान सपोर्टिव होते थे, लेकिन allegedly हिडन मैसेजिंग के जरिए शी वुड स्लिप एनालिसिस बैक टू वेस्टर्न थिंक टैंक्स। वो लिखती थी शिया रेजिस्टेंस के हक में, मगर उसकी हर लाइन में एलिजिडली वो डाटा होता था जो फॉरेन इंटेलिजेंस यूज़ कर सकती थी। पब्लिक पल्स, क्लरिकल माइंडसेट और पॉलिटिकल डिसेंट का एक्सेट। 2022 में कैथरीन ने BBC न्यूज़ पर्शियन को एक सेंसेशनल इंटरव्यू दिया, जहां उसने बहुत से फैक्ट्स बताए, जिसमें बज़ाहिर तो उसने माना है कि इट वॉज ऑल नेचुरल, शी वॉज लुकिंग फॉर वैलिडेशन,
as Muslim, so she became Shia Muslim and she was inspired by the atmosphere. Therefore, whatever she wrote against Israel was her feelings at that time. लेकिन ये सब किसी भी साहिब अक़ल के लिए हज़म करना नामुमकिन है कि वो अचानक से खुद ब खुद ही शिया इस्लाम छोड़ दिया और अचानक से पता लगा कि दैट शी इज़ वर्किंग प्रेजेंटली फॉर इजरायली इंस्टीट्यूट. उस इंटरव्यू ने ईरान में हंगामा मचा दिया. ऑन कॉन्ट्ररी, कैथरीन क्लेम्ड कि शी वॉज नेवर अप्रोच्ड बाय एनी इजरायली इंटेलिजेंस जो ईरान के अंदर से डाटा चाहते थे, और कहती है शी वॉजंट फॉर्चुनेट इनफ. यानी इतने कॉन्ट्रडिक्शंस उसके इंटरव्यू में थे जो कि बीबीसी के साथ था कि साफ पता लगता था कि शी वॉज ऑन सम एजेंडा. पता नहीं उसकी किताबें थी या डिसेप्शन था, जिसमें है अ टेल ऑफ ग्रैंड रेजिस्टेंस. इस किताब ने ईरान की आइडियोलॉजी को ग्लोरीफाई किया और वेस्ट के मीडिया को ज़ायनिस्ट प्रोपेगेंडा मशीन डिक्लेयर किया. लेकिन बीबीसी इंटरव्यू के बाद ये किताब एस्पेनेज का हिस्सा समझी गई, जिसका मकसद था ट्रस्ट गेन करना, इन्विटेशंस लेना और इंटरनल डिबेट समझना. यानी सुहेल वराई साहब के अंदाज में अगर बात करें तो ऐसी वेस्टर्न खातून जो बहुत दिलकश भी हों और ईरानी गवर्नमेंट नैरेटिव को एम्पलीफाई भी करें तो मौलवियों का दिल तो आया होगा. और ऐसा ही हुआ. कैथरीन के मुताबिक शी सॉफ्टली डिक्लाइंड सच प्रपोजल्स. However, she denied to have any sort of physical relations for this matter. What was the impact of her espionage? Iranian authorities ने इस इंटरव्यू के बाद पैनिक मोड में इंक्वायरीज शुरू कर दी. मीडिया से उसका नाम हटा दिया और उसके IRGC और क्लरिकल लिंक्स को इन्वेस्टिगेट किया गया. But it was too late. Women and espionage, a global pattern. This wasn't the first time. औरत का इस्तेमाल एस्पेनेज हिस्ट्री का एक पुराना तरीका है. माटा हारी, फ्रेंच डांसर टर्न्ड World War I spy, Anna Chapman, Russian model spy in USA, Israeli agents in Lebanon and Syria, usually disguised as journalists or volunteers. ईरान ने कैथरीन को स्कॉलर समझा, मगर वो एक सेंसर थी जो सब कुछ महसूस करके रिकॉर्ड कर रही थी. इसमें ईरानियन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा फेलियर था. क्या ईरान के इंटेलिजेंस इतनी इजीली फूल हो गई? ईरान के क्रिटिक्स ने कहा कि प्रेस क्रेडेंशियल्स वर ग्रांटेड टू अर्ली, फॉरेन जर्नलिस्ट का मॉनिटरिंग वीक है और कल्चरल एफिनिटी का मिसयूज हुआ है. और जब कैथरीन ने हिजाब और कुरान का सहारा लिया तो कोई शक नहीं रहा. खैर, कैथरीन चली गई, लेकिन उसने एक सबक छोड़ दिया. एक दुश्मन अगर चादर में आए तो आंखों को और दिल को दोनों को जागना होता है. ईरान जैसे सेंसिटिव स्टेट के लिए एक आई ओपनर था कि जंग सिर्फ सरहदों पे नहीं, अक्लों और कलामों के ज़रिए भी लड़ी जाती है. ये सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं, ये एक मुल्क की आंख बंद होने की कहानी, जहां दुश्मन ने मुस्कुरा कर सलाम किया और अंदर से राज ले लिए. कैथरीन की कहानी पर पर्दा गिर गया, मगर उसकी टाइमिंग, उसके बाद होने वाले इवेंट्स सब इस बात की तरफ इशारा करते थे कि कुछ और भी था और कुछ और होने वाला था. इसके आफ्टरमैथ क्या हुआ? एक फॉरेन जर्नलिस्ट जिसको शिया इस्लाम का एम्बेसडर समझा गया, वो एलिजिडली एक डाटा कलेक्टर निकली. ईरान ने तुरंत मल्टीपल फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स के क्लियरेंस रिवॉक किए और मशहद में जर्नलिस्ट मूवमेंट्स पर टाइट स्क्रूटनी शुरू की और IRGC और प्रेस ऑफिसेस में इंटरनल वेटिंग पॉलिसी अपडेट की. मगर जख्म तब तक लग चुका था और उसका असर बाद में दिखा. इजरायली स्ट्राइक्स क्या कोई कोइंसिडेंस थी या ऑपरेशनल कंटिन्यूटी थी? कैथरीन के बीबीसी के इंटरव्यू के आसपास ईरान में एक सिलसिला शुरू हुआ. टॉप असैसिनेशंस, टारगेटेड ड्रोन स्ट्राइक्स, मिसाइल इंजीनियर्स, IRGC स्ट्रेटजिस्ट और इवन न्यूक्लियर माइंस को मार दिया गया. अगर हम एक एग्जाम्पल को रिव्यू करें तो ब्रिगेडियर जनरल हसन सईद खुदाई assassinated in Tehran May 2022 और कर्नल दाऊद जाफरी IRGC एरोस्पेस सीनियर एडवाइजर killed in Syria.
multiple unnamed engineers working on Shahid drones were eliminated. Intelligence reports ने बताया that targeting was extremely precise. Movements, patterns और weak moments सब कुछ enemy को पहले से पता थे. ये सब तभी पॉसिबल होता है जब इनसाइड डाटा ऑलरेडी अवेलेबल हो. और अगर बात करें रीसेंट ईरान इसराइल वॉर की, तो इसराइल ने अपने पहले हमले में ईरान की कमर तोड़ दी. हम सब ईरान को इस वॉर में सपोर्ट तो कर रहे थे, लेकिन इसका क्या ये मतलब है कि ईरान से क्वेश्चन ना उठाया जाए कि ये सब कुछ इतनी प्रिसीजन और एक्यूरेसी के साथ ईरान के साथ कैसे हुआ? यहाँ पर एक सवाल भी उठता है, Was कैथरीन जस्ट अ पॉन? एक ग्रोइंग थ्योरी ये भी है कि कैथरीन एक पॉन थी. उसे स्टेज तरीके से इंटरव्यू में डाला गया था ताकि एक्चुअल एजेंट्स अंडरकवर ही रहे, और उसका इंटरव्यू सिर्फ ईरानियन वेटिंग स्ट्रक्चर को डिसक्रेडिट करने का जरिया बनी. और अगर हम उसके रीसेंट आर्टिकल्स की बात करें तो शी हैड एक्सेस टू सेंसिटिव IRGC कॉरिडोर्स. शी प्रेडिक्टेड पॉसिबल फ्रैक्चर्स बिटवीन बसीज एंड यूथ परसेप्शन, wrote detailed psychological insights on clerical elite. अगर उसकी लिखी हर लाइन एक ब्रीफिंग बन के तलेवीद जाए तो किसी को इस बात पर हैरत नहीं होनी चाहिए. कैथरीन शिताम का केस यूनिक नहीं. हिस्ट्री भरी पड़ी है उन औरतों से जिन्हें ब्यूटीफुल मास स्ट्रेटेजिक माइंड के साथ फ्रंट बनाया गया. सॉफ्ट ट्रस्ट बिल्डिंग थ्रू पर्सनल प्रॉक्सिमिटी और आइडियोलॉजी, हार्ड इंटेलिजेंस एक्सट्रैक्शन अंडर एकेडमिक और मीडिया कवर. इसकी कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं, जैसे कि शुला कोहन, इजरायली स्पाई इन बेरूत, ऑपरेटेड अंडर जूइश रेफ्यूजी कवर. सिल्विया राफेल, मोसाद एजेंट posed as photographer and social worker. Anna Chapman, Russian intelligence agent in United States, worked in real estate and academia. कैथरीन ने हिजाब पहना और कैमरा उठाया, मगर उस कैमरे का लेंस में ईरान के अंदर तक दिखता था. अब हम उसे सच माने या झूठ, गलती तो ईरान की अपनी थी. ईरान जैसे सिक्योरिटी स्टेट के लिए ये एक मॉरल और स्ट्रेटेजिक डिफीट था. कैथरीन ने दिखाया कि नैरेटिव का वेपन क्या होता है, किस तरह रिलीजियस सिंपैथी का ट्रस्ट बनाया जा सकता है, और किस तरह आइडियोलॉजिकल बेट इंटेलिजेंस का सोर्स बन सकता है. वो शिया नज़र आई, सुन्नी राइटर्स को चैलेंज करती थी और इसराइल को अपोज करती थी, मगर असल में वो एलिजिडली उनका प्रोडक्ट थी, क्योंकि आज शी इज़ ओपनली वर्किंग फॉर देम. इस जिम में हमारे लिए क्या सबक है कि मीडिया लिटरेसी इज़ योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. आज का डिजिटल बैटलफील्ड सिर्फ बॉम्ब्स का नहीं, माइंडसेट का है. कैथरीन जैसे लोग इन्फिल्ट्रेट करते हैं सिर्फ गवर्नमेंट्स में नहीं, आपके स्क्रीन्स तक. मीडिया ट्रस्ट करने से पहले सोच समझो, नैरेटिव सुनने से पहले नीयत समझो, और किसी भी लाउड सपोर्ट को एकदम से बिलीव न कर. हर बार बॉम्ब गिराकर नहीं मारा जाता. कभी कभी कैमरा, कलाम और हैशटैग्स के जरिए मुल्कों को तोड़ने में बड़ा हाथ प्ले किया जाता है. आस्क योरसेल्फ, आप किसे फॉलो कर रहे हैं? आप कहाँ से न्यूज़ लेते हैं? क्या आप किसी स्क्रिप्टेड बैटलफील्ड का हिस्सा हैं या नहीं? कैथरीन तो चली गई, लेकिन अपनी मुस्कुराहट के साथ एक निज़ाम का यकीन तोड़ गई. हर मुसलमान, हर डिजिटल यूज़र, हर यंग थिंकर के लिए ये एक सबक है कि दुनिया का सबसे ख़तरनाक झूठ वो होता है जो सच बन के सामने आए. हर जंग में बारूद नहीं चलता, कभी कभी कलाम बारूद से ज़्यादा ख़तरनाक होता है और कैमरा शमशीर से ज़्यादा ख़तरनाक होता है. एंड दिस इज़ हाउ वी वेलकम यू टू द न्यू बैटलफील्ड. आज हम कैथरीन को गलत कहते हैं, कल किसी और को अपना कर फिर उसको भी गलत कहेंगे. तो सोचो, why was she allowed in the inner circles? How did she publish in prominent Iranian and international media? Why did she choose Sunni Islam first and then Shia Islam as her alleged cover? And today she calls herself as atheist, openly working for Israeli Institute. And why did she lead
just before multiple Iranian generals were assassinated. Because the war is not over oil, it's over hearts, beliefs and identities. اگر ہم نے اپنا نریٹو نہیں لکھا تو دشمن ہمارا نریٹو لکھے گا. This was not just the story of Catherine Chakta. It was the story of how easily Iran was deceived. When our eyes are closed and our hearts are divided, unity is resistance, awareness is defense, and truth is the final victory. Thank you آپ کے قیمتی وقت کا کہ آپ اگر ویلوگ کے اس پوائنٹ تک پہنچ گئے ہیں. پاکستان اپڈیٹس اوریجنلز کو سبسکرائب کریں اور اپنی آراء کا اظہار کریں کمنٹس کے ذریعے. تھینک یو. اللہ حافظ.